Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about anti-UGC net and our topic is that is 4th unit, that is chapter bias is going on. Okay, 22nd chapter is going on and the second part, and the name of the chapter is the Victorian and modern age non-fiction. Okay, प्रीवियस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है. आज हम रेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. अनटू दिस लास्ट इज द वर्क ऑफ, अनटू दिस लास्ट जो है किसने लिखी है, एंड द ऑप्शंस आर Elizabeth Barrett Browning, Arthur Huck Love, John Ruskin, Charles Dickens. And the right answer is John Ruskin. John Ruskin जी ने लिखी है Unto This Last. Okay. Next question is Ruskin's ideal social system would include, और रस्किन जी का जो ideal social system है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व उन्होंने किया है. Okay. And the options are no capitalist government whatsoever, a government that fosters cooperation and not competition. Third option is traditional political structures that have stood the test of time. The last option is laborers that constantly offer the best deals on their products to get more work. And the right answer is a government that fosters cooperation not competition. So रस्किन जी का जो आइडियल सोशल सिस्टम है, इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कोऑपरेशन में, ना कि कंपटीशन में. ओके, तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इस तरह से कोऑपरेट करके कोई भी काम करनी चाहिए, ऐसा रस्किन जी का मानना है. ओके. Next question is what is Ruskin's primary critique of typical capitalist economies? And the options are socialism is just more fair, capitalist art is not good. Third option is capitalist competition produces inferior products, workers and makes laborers feel alienated. And last option is with a rich poor class division, power becomes too unbalanced. And the right answer is socialism is just more fair. रस्किन जी का जो प्राइमरी क्रिटिक उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है अपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर, जो टिपिकल है उस वक्त जो चल रहा था, उसको उनके हिसाब से सोशलिज्म ज़्यादा बेटर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जस्ट जॉन रस्किन व्हाई शुड एन आर्टिस्ट नॉट वर्क इन द स्टूडियो. तो रस्किन जी के हिसाब से आर्टिस्ट को स्टूडियो वर्क क्यों नहीं करनी चाहिए. एंड द ऑप्शंस आर आर्ट दैट इज ऑनेस्ट टू लाइफ इज मोर डिवाइन. Second option is truth and beauty are found in nature. Third option is it's too mechanical. And last option is all of these, that is A, B, C. The right answer is all of these. तो रस्किन जी के हिसाब से एक आर्टिस्ट को वर्क क्यों नहीं करनी चाहिए स्टूडियो में, क्योंकि आर्ट दैट इज ऑनेस्ट टू लाइफ इज मोर डिवाइन, ट्रूथ एंड ब्यूटी आर फाउंड इन नेचर. मीन्स जो भी आप काम करते हैं ना स्टूडियो में नहीं करके अगर ओपन जगह में करें, इट्स टू मैकेनिकल होता है, नेचर होता है. नेचर हमें नेचुरल चीज़ दिखाना चाहिए हमें आर्टिस्ट को. ठीक है, जो कि नेचुरल है दैट इज़ हमें ट्राई करना चाहिए शो करने के लिए. और आर्ट जो है ऑनेस्ट होना चाहिए. ठीक है, टोटली ऑनेस्टीज में दर्शानी चाहिए. इस वजह से इसे स्टूडियो में नहीं बल्कि अच्छे सेट पे जाकर दर्शाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज द मोस्ट क्लियर इंडिकेटर ऑफ रोमांटिक इन्फ्लुएंस ऑन रस्किन्स थॉट. एंड द ऑप्शंस आर हिज लव ऑफ पोएट्री, हिज लव लाइफ. थर्ड ऑप्शन इज हिज एंजॉयमेंट ऑफ नेचर एंड नेचुरल ड्राइंग्स. And last option is his concept of the role of an artist. The right answer is his concept of the role of an artist. So इसमें most clear indicator romantic influence का क्या था. रस्किन जी का जो सोच है, थॉट है, तो रोमांटिक इन्फ्लुएंस का क्या मतलब असर पड़ा था. ओके, so that was his concept of the role of an artist. आर्टिस्ट का जो रोल प्ले करना है उसके ऊपर जो उनका कंसेप्ट था वो ज़्यादा क्लियर इंडिकेट कर रहा था, रोमन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था. ठीक है. Next question is what caused Ruskin's interest in socio-economic justice? And the options are studying poor people for one of his books in 1856, A Crisis of Faith in 1858, the affluence he had growing up, and last option is all of these played a part in his developing thoughts on the matter. The right answer is the affluence he had growing up. रस्किन जी का जो इंटरेस्ट है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर, वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स मीन्स क्या कॉज किया, क्या किस वजह से उनका इंटरेस्ट इसमें आ गया सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में. ठीक है, तो दैट इज़ द एफ्लुएंस ही हैड ग्रोइंग अप. तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था. ठीक है, एफ्लुएंस मीन्स बढ़ना, इंक्रीज होना. ठीक है, तो इसमें उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा मीन्स उनका डीलिंग्स में ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से इन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा जाग गया था सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में. ठीक है. About what subject is John Ruskin's The Stone of Venice? And the options are architecture, art criticism, European history, writing. And the right answer is architecture. जॉन रस्किन जी का जो स्टोन्स ऑफ वेनिस, इसमें क्या सब्जेक्ट उन्होंने दिखाया है, दैट इज आर्किटेक्चर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following is not a style of architecture that John Ruskin considers in the Stones of Venice? Options are Byzantine, Gothic, Renaissance and last is Modernist. And the right answer is Modernist. तो कौन सा हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं है जो कि जॉन रस्किन ने स्टोन्स ऑफ वेनिस में दिखाया है? तो दैट इज मॉडर्निस्ट. ठीक है, बाकी सब है बट ये नहीं है. नॉट हमें ध्यान देना होगा. ओके, तो मॉडर्न स्टाइल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दर्शाया है आर्किटेक्चर का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्टोन्स ऑफ वेनिस जॉन रस्किन आर्ग्यूज फॉर द सुपरिटी ऑफ व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो उन्होंने कौन से स्टाइल को ज़्यादा सुपरिटी दिया है, ज़्यादा ध्यान दिया है? ऑप्शंस है बाइजेंटाइन, गॉथिक, रिनेसेंस, नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस. मतलब इसमें से कोई भी नहीं है जो कि उन्होंने ज़्यादा सुपरिटी दिखाया हुआ हो. ओके, फॉर द आर्किटेक्चर स्टाइल. ठीक है, इन द स्टोन्स ऑफ वेनिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What sentiment best expresses that what Thomas Carlyle mean by close the Byron open thy goat? And the options are compared to goat. Byron didn't write enough about literacy and education. Second option is Byron's work are better used as doorstops than as instructive literature. Third option is unlike Byron, goat wrote literature that can serve as salutary moral instruction and enlightened historically self-conscious thinking. Last option is in this text a carefully veiled critique of the monarchy. Byron and Goethe stand in symbolically for Queen Victoria and Charles Darwin respectively. And the right answer is unlike Byron, Goethe wrote literature that can serve as salutary moral instruction and enlightened historically self-conscious thinking. So जो कैरल जी का जो एक्सप्रेशन था, जो सेंटिमेंट था, वो क्या दर्शा रहे हैं इस सेंटेंस से? क्लोज द बायरन ओपन द की. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? तो इसमें कैरल जी मीनिंग बताना चाहते हैं कि बायरन की तरह अनलाइक बायरन, गोथ ने लिटरेचर लिखी है, ठीक है, जो कि सर्टरी मोरल इंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं. ठीक है, हिस्ट्रिकली सेल्फ कॉन्शियस थिंकिंग को दर्शा रहे हैं. ठीक है, जो कि बायरन जी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बंद कर देनी चाहिए, क्लोज कर देनी चाहिए. इस टाइप का उनका मानना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रेज व्हाइट मैन्स बर्डन कॉइन्ड बाय किपलिंग रेफर टू? एंड द ऑप्शंस आर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स मैनिफेस्ट डेस्टिनी टू colonize the world. Second option is the distinctly moral responsibility of the British to colonize the world and educate its people. Third option is the British need to improve technology and transportation in other parts of the world. Last option is the importance of solving economic and social problems in England before tackling the world's problems. And the right answer is the recently moral responsibility of the British to colonize the world and educate its people. तो जो वाइट मैन्स बर्डन जो है फ्रेज, इसमें किपलिंग ने दिया है. ठीक है, इसमें क्या वो दर्शाना चाहते हैं? तो इसका मतलब है द डिस्टिंक्टली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश का जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड एंड एजुकेट इट्स पीपल, अपने पीपल को पढ़ाएं, जागरूक करें. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस यूटिलिटेरियनिज्म? का मीनिंग क्या है? कौन सा उसमें मीनिंग बता रहा है? ठीक है, ऑप्शंस में से देखकर हमें बताना होगा. A farming technique aimed at maximizing the productivity with the fewest tools. Second option is a moral arithmetic, which states that all humans aim to maximize the greatest pleasure to the greatest number. Third option is a critical methodology, stating that all words have a single meaningful function within a given piece of literature. And last option is a philosophy dictating that we should only keep what we use on a daily basis. And the right answer is a moral arithmetic. एक्चुअली यूटिलिटेरिज्म मीन्स क्या होता है? एक मोरल अरिथमेटिक है, ठीक है, जिसमें ऑल ह्यूमंस, जितने भी इंसान हैं, सब दे एम टू मैक्सिमाइज द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब जितना हो सके ज़्यादा वो खुश रहना चाहते हैं, खुशी को अपनाना चाहते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज, थ्योरीज एंड इवेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू विक्टोरियंस फीलिंग लेस like they were uniquely special central spaces in the universe and more isolated? And the options are geology, evolution, discoveries in astronomy about stellar distances, all of the above. And the right answer is all of the above. इसमें से जो जितने भी डिस्कवरी किए गए हैं, थ्योरीज वगैरह लिए गए हैं, इवेंट्स जो कि विक्टोरियंस को कंट्रीब्यूशन दिया गया है, फीलिंग लेस लाइक दे वेर यूनिकली स्पेशल, उसमें से कोई स्पेशल है, सेंट्रल स्पेसिस है, यूनिवर्स को लेकर ज़्यादा अलग है थोड़ा, तो सब क्या है? तो सारे के सारे बहुत ही अलग है, स्पेशल है. ठीक है, जियोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डिस्कवरीज इन यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी
अबाउट स्टेलर डिस्टेंसेस। इस तीनों की तीनों ही बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि विक्टोरियंस ने फील किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अवेयरनेस इन लेट विक्टोरियन पीरियड ऑफ इमेंस ह्यूमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोर्स ऑफ रनिंग एन एम्पायर, एंड द ऑप्शंस आर द बोर वॉर इन द साउथ ऑफ अफ्रीका, द जमाइका रिबेलियन इन 1865, द आयरिश क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जैसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से कंट्रीब्यूशन दिया गया है अबाउट अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन लेट विक्टोरियन पीरियड ऑफ द इमेंस ह्यूमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोर्स ऑफ रनिंग एन एम्पायर, एक एम्पायर चलाने के लिए पॉलिटिकल कोर्स, इकोनॉमिक, ह्यूमन, सारी बातों को लेट विक्टोरियन पीरियड में किसने अवेयर कराया, कि सारी की सारी चीज़ें ने हेल्प किया अवेयरनेस क्रिएट करने में। दैट इज बोर वॉर इन साउथ अफ्रीका, जमाइका रिबेलियन 1865 एंड आयरिश क्वेश्चन। ठीक है, तीनों की तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स प्रोमोटेड versions of socialism and revolutionary movements of the working classes to take control of government and industry, and the options are William Morris, John Ruskin, Edward Fitzgerald, and last option is both A and B. The right answer is both A and B. That means ये दोनों ही responsible है। Which of the authors promoted versions of socialism? Socialism और revolutionary movement को किसने आगे बढ़ाया था? ठीक है, वर्किंग क्लास को लेकर ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, तो वो है मॉरिस जी और जॉन रस्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द जनरल फीलिंग एक्सप्रेस इन लिटरेचर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एरा, एंड द ऑप्शंस आर melancholic, languor and comic self criticism, sincere earnestness, raucous celebration mixed with self congratulatory sophistication, and last option is boredom mixed with a desire for enlivening innovation, and the right answer is raucous सेलिब्रेशन मिक्स विद सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी सोफिस्टिकेशन। तो कौन सा इसमें से जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है हमारे लिटरेचर के फीलिंग को एक्सप्रेस करने के ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एरा, तो वो है हमारा रैकस सेलिब्रेशन मिक्स विद सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी सोफिस्टिकेशन। तो रैकस सेलिब्रेशन मीन्स हल्ला कर करके एकदम नॉइस करके सेलिब्रेट करना, मिक्स विद सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन मीन्स कोई भी हैविंग और शोइंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस शो करना ऑफ द वर्ल्ड या सोशल सिचुएशन, जो भी सोशल ये जो चल रहा है इसको अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, फील किया है। ठीक है, तो वो था हमारा विक्टोरियन एरा का फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द कंसेप्शन ऑफ वुमेन एज एन एंजल ऑफ द हाउस मोस्ट क्लियरली प्रोपाउंडेड। जो वुमेन है इसका कंसेप्ट लिया गया कि ये एक घर की क्या है, एंजल है। तो ये कंसेप्ट जो है कब लिया गया, कौन से टेक्स्ट में? ऑप्शन आर टेनिसन्स द प्रिंसेस, जेन एसेंस, जेन आयर, जॉन रस्किन्स ऑफ क्वींस आर गार्डन्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। राइट आंसर इज जॉन रस्किन्स ऑफ क्वींस गार्डन्स। जॉन रस्किन जी का लिखा हुआ जो है जो क्वींस गार्डन, इसमें उन्होंने औरतों को क्या कहा गया है, एंजल ऑफ द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग विक्टोरियन राइटर्स रेगुलरली पब्लिश देयर वर्क इन पीरियडिकल्स। कौन रेगुलरली अपना पब्लिश करा रहे थे? ठीक है, कौन विक्टोरियन राइटर थे जो रेगुलरली पब्लिश अपने वर्क्स को करा रहे हैं? ओके, पीरियडिकली। सो ऑप्शंस आर थॉमस कैरल, मैथ्यू आर्नल्ड, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों की तीनों ही मीन्स विक्टोरियन राइटर्स हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम, और वो उन्होंने पब्लिश भी टाइम टू टाइम उन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश भी कराया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which genres seemed particularly amenable to Victorians in instructing the public about social matters and promoting partisan viewpoints? Options are novel, non-fiction prose, the short story, all of these, and the right answer is non-fiction prose. कौन सा जेनर है जो कि दिखाता है, दर्शाता है विक्टोरियंस को, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन मिला जा रहा है अबाउट द पब्लिक, अबाउट सोशल मैटर्स को लेकर उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, प्रोमोटिंग पार्टीशन व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो वो है नॉन फिक्शन प्रोज। नॉन फिक्शन प्रोज में पब्लिक को इंस्ट्रक्ट किया जाता है अबाउट सोशल मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट डू मैथ्यू आर्नल्ड्स मोरल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग नॉन फिक्शन एंड वाल्टर पैटर्स एस्थेटिक ऑफ प्रीऑक्यूपेशन हैव पेव्ड द वे, एंड द ऑप्शंस आर renewed secularism in the 20th century. Second option is modern literary criticism. Third option is late 19th century and early
20th century satirical drama, and last option is the surrealist movement. The right answer is late 19th century and early 20th century satirical drama. So आनंद जी को किस चीज़ की वजह से मोरल एक्सपीरियंस मिला अपने नॉन फिक्शन लिखने का, ठीक है, और वाल्टर पैटर जी को एस्थेटिक प्रीऑक्यूपेशन पेव द वे, तो उन्हें रास्ता कब मिला था? लेट 19th century एंड अर्ली 20th century सैटिरिकल ड्रामा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज सुडोनिम इज द अल्फा ऑफ द प्लाव। अल्फा ऑफ द प्लाव जो है किसने लिखी हुई है? रॉबर्ट नाइट, फ्रांसिस बेकन, A.G. गार्डिनर, J.B. प्रेसली। द राइट आंसर इज A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर जी ने लिखी है, बट सुडोनिम मीन्स उन्होंने अपना नाम नहीं दर्शाया है, बट उसकी जगह उन्होंने दूसरा नाम दे दिया है। तो ऐसे केस में उसे क्या कहते हैं? सुडोनिम कहते हैं, जो अपने नाम को छुपा देते हैं, लिखते वक्त नहीं बताते कि मैंने लिखी है, ठीक है, और टाइटल दूसरा को दे देते हैं, दैट इज अल्फा ऑफ द प्लाव, तो इसे सुडोनिम कहते हैं। और ये लिखा किसने? A.G. गार्डिनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज A.G. गार्डिनर्स फेलो ट्रैवलर इन ए फेलो ट्रैवलर? बर्ड, मैन, डॉग, मॉस्किटो, एंड द राइट आंसर इज मॉस्किटो। A.G. गार्डिनर जी का जो फेलो ट्रैवलर था, उसमें फेलो ट्रैवलर वर्क में फेलो ट्रैवलर का कौन था, कौन उसके साथ था? तो दैट वाज मॉस्किटो, मच्छर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड A.G. गार्डिनर एक्यूज हिज फेलो ट्रैवलर इन ए फेलो ट्रैवलर? एज ए vagrant, as a public nuisance, as traveling without a ticket, all of the above, and the right answer is all of the above। इसमें A.G. गार्डिनर जी ने अपने फेलो ट्रैवलर को किस बात के लिए एक्यूज किया है, ब्लेम किया है? तो ये सारी की सारी बातों के लिए उन्होंने उससे क्या किया है? ब्लेम किया है। और फेलो ट्रैवलर कौन था? मच्छर। तो मच्छर को उन्होंने ब्लेम किया है, बिना टिकट के मेरे साथ चल रहे हो, ये वो बहुत सारी बातें उससे उन्होंने ब्लेम करी है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द राइटर्स हु कंटिन्यूअली मिसक्वोटेड द ऑथर्स दे लव्ड। Options are Pope and Dryden, Bacon and Lamb, Hazlitt and Swift, Lamb and Hazlitt। राइट आंसर इज लैम्ब एंड हैजलिट। राइटर्स का नाम बताना है जो कि मिस कोट किया था द ऑथर्स दे लव्ड, जिन्हें प्यार करते थे, मतलब दे लव करते थे, उन्होंने उनको टोटली मिस कोट किया है। सो कौन है? लैम्ब एंड हैजलिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज गार्डिनर फील अबाउट द फेलो ट्रैवलर ड्यूरिंग हिज जर्नी? दैट ही हैज इंसल्टेड, दैट ही हैज प्लीज्ड अदर्स, that he is entertained, and last option is that he has caused worries, and the right answer is that he has entertained। गार्डिनर ने क्या फील किया फेलो ट्रैवलर को जब वो साथ उसके साथ जर्नी कर रहा था? उन्होंने कैसा फील किया? तो वो उससे एंटरटेन कर रहा था, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।